Hello everyone, learned teachers and evaluators. Welcome to Dr. Abdul Samad Editorials. In this video, we will understand the complete process of digital evaluation system, that is on screen marking, in short OSM, for class 12 answer books with effect from CBSE Board Examination 2026. This video is very important for you because in this video, I will guide you step by step how to log in, how to on-screen evaluate digitally, how to enter marks, how to avoid common mistakes and how moderation works. So वीडियो को एंड तक जरूर देखिए and also like, subscribe and share कीजिए. Let's begin. Let us start. CBSE's on-screen marking, that is OSM, a complete evaluator guide. What is OSM or on-screen marking system? On-screen marking or OSM is the digital evaluation system introduced by the CBSE for secure and transparent checking of class 12 board examination answer books. All the answer books are scanned and uploaded to a secure server by the CBSE. After that, evaluators check copies on computer screen at designated evaluation centers. Before starting on-screen evaluation process, pre-evaluation requirements are: before beginning or before starting, ensure the following requirement. First, appointment of evaluator, examiner code, that is the OSIS code number, and password. These things are provided to the registered email of the evaluator by the CBSE. Stable internet, then marking scheme. It may be hard copy or digital. Digital is available on screen, and CBSE guidelines. Before starting evaluation process, ensure that you have received your examiner credentials. That is, all the credentials are shared by CBSE through the registered email ID of the evaluator in the OSIS, and official marking scheme. This will be provided by the CBSE. After that, carefully read subject specific instructions provided by the CBSE. So here, before evaluation process, these things are required. Now process. So let us know step by step login process. So first, open the Chrome or any browser. First, open the internet browser. So in the internet browser, type the URL, that is cbse1mark.co.in/cbse evaluate web. ये जो है, ये जो URL को टाइप करने से वो जो एक CBSE का जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम वो स्टार्ट हो जाएगा और लॉन्च होगा. तो दिस इंटरफेस इज लाइक दिस. ये ऐसा एक पेज निकलेगा. तो उसमें फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग ये कर लिया, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट, एंटर द इवेल्युएटर क्रेडेंशियल्स, दैट इज फर्स्ट इवेल्युएटर आईडी. ये जो मेरा आईडी है E1057276, ये है मेरा इवेल्युएटर आईडी. वो ओएसिस का कोड नंबर है. देन पासवर्ड, एक पासवर्ड सीबीएसई ईमेल का थ्रू भेजता है. सो वो पासवर्ड ये करने का बाद में, लॉगिन करने के बाद में चेंज करके ये पासवर्ड जो है इसको एंटर करना है. देन स्कूल नंबर जरूरी होता है. जो सीबीएसई का जो स्कूल नंबर है, तो मेरा स्कूल नंबर है 37025. सो इसको ये फील्ड में एंटर करना है. उसका बाद में इवैल्यूएटर का डेट ऑफ बर्थ चाहिए. डेट ऑफ बर्थ सबसे फर्स्ट ये है कि ये फील्ड में फर्स्ट क्लिक करना है. फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करना है. ईयर, अपना जो ईयर है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है. देन मंथ को सिलेक्ट कर लेना है. मंथ को जब सिलेक्ट करेगा तो एक मंथ का कैलेंडर आएगा और वो अप्रोप्रिएट डेट में क्लिक करने से ऑटो फिल्ड हो जाएगा ये डेट ऑफ बर्थ. तो ये चारों जो क्रेडेंशियल है फिल करने का बाद में सेंड ओटीपी को क्लिक करना है. सेंड ओटीपी क्लिक करने से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल में 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा. तो सेंड ओटीपी क्लिक मिलने का बाद में फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में क्या करना है? ये जो 6 डिजिट ओटीपी है इसको एंटर करना है. एंड देन एंटर करने के बाद में ये जो क्लिक लॉगिन करना है. क्लिक लॉगिन जो है इसको क्लिक करने से जो मेन मेनू है वो लॉगिन हो जाएगा. सक्सेसफुल लॉगिन का बाद में ये मेन मेनू ये डिस्प्ले हो जाएगा. आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर इवैल्यूएशन डैशबोर्ड, दैट इज द मेन मेनू. तो इस तरह का मेन मेनू होता है. ये है इवैल्यूएशन डैशबोर्ड और मेन मेनू इंटरफेस ऑफ द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और OSM. तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक ये है, यही है मेन मेनू. इसमें हम लोग मेन मेनू में देखता है फर्स्ट होम है. होम, यही जो होम पेज है इंटरफेस, तो इसका इतना ये नहीं है, ये होम पेज है. तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग को डिस्प्ले होता है? ये
फर्स्ट आप जो यूजर आईडी यूज करके लॉगिन किया है उसको देखा ही मिलेगा। देन यूजर का नाम, यूजर मींस इवैल्यूएटर का नाम इसमें डिस्प्ले होगा। तो ये चीज जो मेन पेज में डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया होम पेज। तो होम पेज में नेक्स्ट हमको क्लिक करना है क्या, फर्स्ट ये होम पेज निकलने का बाद में पहले हम लोग का जो प्रोफाइल में क्लिक करना है, मेन असेसमेंट को क्लिक नहीं करके फर्स्ट प्रोफाइल को क्लिक करके प्रोफाइल का अपडेट कर लेना है। तो प्रोफाइल कैसा है देखता है। तो ये है प्रोफाइल ऑफ द इवैल्यूएटर, इसको फर्स्ट अपडेट करना है। तो प्रोफाइल क्लिक करने से ये जब हम लोग क्लिक करता है प्रोफाइल को तो ये डिस्प्ले हो जाता है। तो इसमें जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोफाइल का जो इवैल्यूएटर का प्रोफाइल है, ये पहले जो क्रेडेंशियल्स है वो है, ये एडिटेबल नहीं है। इसमें यूजर आईडी होता है, इवैल्यूएटर का नेम होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। इसको एडिट करने का स्कोप नहीं है। तो राइट हैंड साइड में इवैल्यूएटर का जो बैंक डिटेल भरना है, फर्स्ट ये नेम होता है, जो बैंक अकाउंट में जो नेम है एज पर द बैंक अकाउंट, ये नेम को फिल करना है। उसका बाद जो अपना अपना अकाउंट नंबर है उसको यहाँ में टाइप करना है। देन दोबारा इसको अकाउंट को कंफर्म करने के लिए टाइप करना है। ये दिखाई नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेगा। उसका बाद में जो अपना बैंक ब्रांच है उसका IFSC कोड फिल करना है। IFS कोड फिल करने के बाद में एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो ये जो अपना बैंक और बैंक ब्रांच का एड्रेस डिस्प्ले होगा। तो ये सब क्रेडेंशियल फिल्ड अप करने के बाद में ये जो अपडेट बटन है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। ये तो एक बार कर लेने से तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो हमारा ये जो मेन जो असेसमेंट ये है मेनू है, इसको हम फर्स्ट क्लिक करेगा। इसको फर्स्ट क्लिक करने से दिस टाइप ऑफ पेज विल डिस्प्ले, ऐसा एक पेज डिस्प्ले होगा। इसे होता है मेन असेसमेंट डैशबोर्ड। इसमें फर्स्ट इसको डिस्प्ले होने का बाद में एक काम कर लेना है। फर्स्ट ये जो रिफ्रेश बटन है इसको फर्स्ट एक दो बार क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कर लेने से कभी कभी ये डिस्प्ले, ये जो पोर्शन है ये डिस्प्ले नहीं होता है। तो हम लोग अगर ये रिफ्रेश को 2-3 बार कर लेता है तो ये आ जाएगा और कंप्यूटर जल्दी वर्क करेगा। तो रिफ्रेश करने के बाद में ये जो पोर्शन जो है ये अगर डिस्प्ले हो जाता है तो इसमें क्या क्या मिलेगा, मेरा सब्जेक्ट जो होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड नंबर आएगा। यहाँ में हम मेरा जो ये डैशबोर्ड में 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है। तो इंग्लिश कोर है, इंग्लिश कोर तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तो ये मेरा सब्जेक्ट का कोड है 816, ये सब्जेक्ट कोड है। और जो लास्ट का जो 1 है ये सेट नंबर होता है। इंग्लिश कोर का जो सब्जेक्ट कोड है ये 301 है और जो लास्ट का जो होता है ये 1 जो दिखा रहा है ये सेट नंबर है। दैट इज सेट नंबर 2 होने से 3012 इसको डिस्प्ले होगा। और ये नंबर ऑफ अवेलेबल कॉपीज शो कर रहा है ये। तो इंग्लिश का मेरा यहाँ में 2,37,031 कॉपी अभी भी अवेलेबल है। ये देखने का बाद में हम क्या करना है, ये जो स्टार्ट बटन है दिख रहा है, स्टार्ट बटन को क्लिक करने से वो जो आंसर बुक का जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेगा, नेक्स्ट विंडो में हम लोग देखने के लिए मिलेगा और उसको डिस्क्राइब करेगा कैसा हो। तो ये हो गया मेन असेसमेंट डैशबोर्ड। तो फर्स्ट मेन असेसमेंट डैशबोर्ड का कंप्लीट करने का बाद में ये जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट विंडो, ये है असेसमेंट विंडो। उसमें ये हम जब स्टार्ट क्लिक करने का साथ साथ ये आंसर बुक डिस्प्ले होता है। ये हो गया मेन आंसर बुक। तो यहाँ का जो स्क्रीन का जो डिफरेंट पार्ट्स है हम दिखा रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम ये रेड रेक्टेंगल का अंदर में देखा है, ये जो मार्किंग का पैनल है, ये मार्किंग, इसमें लेफ्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर होगा, सब क्वेश्चन दिखाई देगा और ये जो है मैक्सिमम मार्क्स डिस्प्ले होगा। ये जो यहाँ में देन ये जो फील्ड है यहाँ में जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें हम लोग जब इवैल्यूएशन करेगा मार्क देगा, यहाँ में ऑटो फील्ड होगा। ये यहाँ में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। ये जब इवैल्यूएशन करता है हम लोग तो साथ साथ ये ऑटो फिल हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले चेक करेगा। ये अगर यहाँ में कर्सर लेके क्लिक करने का साथ में ये हाईलाइट होगा तो यहाँ में हम कर्सर रखेगा और यहाँ में इवैल्यूएशन करने के लिए वो क्वेश्चन नंबर को मार्क देने का साथ साथ ये ऑटो फिल हो जाएगा। ये तो हो गया। तो ये हो गया मार्किंग पैनल। तो ऊपर में इसको देख रहा है, ये तो डिस्प्ले होगा, ये कंपलसरी है, इसका डिस्क्राइब करने का इतना जरूरी नहीं है। तो ये जो मार्किंग जो पैनल है लेफ्ट साइड में उसका
इसका नीचे में एक चीज मेन चीज है, ये अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर स्टूडेंट नहीं करता है तो उसको नॉट अटेम्प्टेड और नॉट आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब इवैल्यूएशन करेगा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकता। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो सबमिट नहीं कर सकेगा, बार बार रीडायरेक्ट कर देगा, वो रिमाइंड कर देगा, अलर्ट कर देगा। तो ये होता है। तो उसको अगर नहीं करने से NA को क्लिक करना है, NA को क्लिक करने से यहाँ में ऑटोमेटिकली NA ऑटो फिल्ड हो जाएगा। तो ये हो गया मेन स्क्रीन ऑफ द आंसर बुक। तो ये फर्स्ट टाइटल पेज है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। तो आंसर बुक जहाँ में ये दिखाई देगा, तो ये जो है नेक्स्ट स्क्रीन है, ये यहाँ में जो दिख रहा है रेड इंक से 01, 02, 03, ये रेक्टेंगल का बीच में जितना भी पेज जब हम लोग स्टार्ट करता है, ओपन होने का साथ साथ ये जो आंसर बुक का पेज नंबर है, टोटल पेज 1 से 32 तक होता है। जब हम ओपन करता है वो रेड दिखाई देगा पास। जब तक हम इवेलुएट नहीं करेगा वो रेड दिखाई देगा। अगर कोई जो पेज हम चेक करेगा और व्यू करेगा वो पेज ग्रीन हो जाएगा। हाँ, ग्रीन हो गया मीन्स वो पेज हम देख लिया, चेक कर लिया और इवेलुएट कर लिया। तो ये तो हो गया पेज ऑफ द आंसर बुक। दूसरा है ये मेन थिंग्स है, ये जो है हम लोग का मेन इवेल्युएशन करने के लिए जो हम लोग का टूल्स हम यूज करेगा, ये सबको एनोटेशन टूल्स बोलता है। तो ये टूल्स को बॉक्स है, ये टूल्स बॉक्स है। ये बॉक्स को में जो टूल्स है हम लोग एक एक करके यूज करके ये इवोल्यूशन प्रोसेस करेगा और कॉपी को चेक करेगा। इसमें क्या क्या है वो बाद में एक वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेगा। लास्ट में जो होता है ये सबमिट बटन है। सबमिट करने का बाद में कंफर्म करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में दोबारा आंसर बुक आ जाता है। अगर हमको आंसर बुक इवोल्यूशन करने के लिए मन नहीं है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने से फिर मेरा जो मेन डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर देगा। सो नाउ हम लोग देख लेता है वो क्या क्या है एनोटेशन टूल्स और इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या टूल्स होता है। डिफरेंट एनोटेशन टूल्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। फर्स्ट ये है जो मार्क एम टूल जो है, ये है स्टेप मार्किंग का टूल है। इसको हम लोग ऑफ ऑन दो मोड में होता है। जब येलो हाईलाइट रहता है दैट मीन्स ये एम जो एनोटेशन टूल है मार्क मोड में वो ऑन रहता है। तो नॉर्मल मोड में ये मार्क एनोटेशन टूल होता है और दूसरा अगर इसको हम दोबारा क्लिक करने से ये फिर व्हाइट हो जाएगा, दैट मीन्स वो नॉर्मल मोड में आ जाता है। सेकेंड है ये राइट होने से ये टिक होता है, राइट टिक मार्क है एनोटेशन टूल्स। जब हम मार्क देता है तो राइट क्लिक करने से हम मार्क अलॉट कर सकता है। जब तक हम राइट क्लिक नहीं करेगा वो मार्क नहीं होगा। जब हम मार्क स्टेप मार्किंग होता है, एम जब हम क्लिक करेगा, राइट क्लिक करेगा, वो हमें ऑटोमेटिकली मार्क्स दिखाई देगा। जो भी मार्क्स हमको अप्रोप्रिएट मार्क में क्लिक कर लेगा तो ऑटोमेटिकली साथ साथ ये राइट क्लिक भी हो जाता है। नेक्स्ट है अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो इसको रॉन्ग देने के लिए ये जो है रॉन्ग आंसर मार्क और रॉन्ग और क्रॉस मार्क है, रॉन्ग एनोटेशन टूल है। ये जो टूल्स है ये लाइन खींचने के लिए है, ब्लैंक पेज है, इसका इतना जरूरी यूज नहीं होता है तो इसको इतना यूज नहीं होता है और वो एनोटेशन टूल को हमें दिखाई भी नहीं मिला है। तो ये कुछ भी चीज अगर नोट करना है तो ये रिमार्क करना है, ये टूल को यूज कर सकता है, नोट एनोटेशन टूल्स। ये इतना यूज नहीं होगा। ये टूल्स भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, व्यू टूल है ये, दिस टूल इज नोन एज व्यू टूल। सपोज कोई भी एक पेज वहां में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, हम उसको मार्क्स देने का जरूरत जगह नहीं है तो उसको हम व्यू टूल को क्लिक करके यहाँ में क्लिक करने से ये व्यू टूल आ जाएगा। तो वो पेज में हम मेरा व्यू होने से ये व्यू टूल उसको डिस्प्ले करेगा। अगर इफ सम पेजेस आर ब्लैंक देन ये जो ब्लैंक टूल है, ब्लैंक टूल को हम लोग यूज करता है। अच्छा 32 पेज तो यूज नहीं कर सकता है, तो जितना भी ब्लैंक पेजेस है वहां में ब्लैंक टूल को क्लिक करने से वो येलो हाईलाइट हो जाएगा और वन बाय वन उसको हम पेज में क्लिक करने से ये ब्लैंक आ जाएगा और नेक्स्ट पेज में हम लोग जाने से अच्छा रहेगा। देन ये हो गया डिलीट टूल। ये जो बिन है, डस्टबिन है, दिस इज द आइकॉन ऑफ द डिलीशन। तो सपोज हम कोई भी मार्क रॉन्गली दिया है तो उसको डिलीट करने के लिए और फिर उसको दोबारा हम क्लिक करना है। सपोज ये एम टूल है, इसको हाईलाइट होता है तो वो डिलीट टूल काम नहीं करेगा, तो इसको दोबारा क्लिक करने से वो नॉर्मल मोड में आएगा। देन इसका बाद ये डिलीट टूल क्लिक करके उसको ये डिलीट कर सकता है। फर्स्ट इसको नॉर्मल मोड में लाना है, देन उसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है, देन इसको डिलीट कर सकता है। देन स्क्रिप्ट वाइज कुछ कमेंट देने से ये होता है।
तो ये तो हो गया ये। और एक टूल्स है एनए टूल्स और नॉट अटेम्प्ट टूल्स, वो तो मार्किंग का जो पैनल है उसका लास्ट बॉटम में है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन बच्चा लोग आंसर नहीं करता है तो उसमें एनए को यूज करना है। सो दीज आर दी डिफरेंट टूल्स और नोन एज एनोटेशन टूल्स यूज्ड फॉर ऑन स्क्रीन मार्किंग और इवैल्यूएशन। नाउ व्यू टूल कैसे यूज करता है, यूज ऑफ द व्यू टूल। सो ये जो पेज है इसमें मार्क देने का कोई जगह नहीं, ये फर्स्ट पेज है और ये टाइटल पेज है, तो इसको तो सिंपली देखना ही है। तो ये फर्स्ट ये जो व्यू टूल हम क्लिक किया, ये जो हाईलाइट हो रहा है, येलो हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट होने के बाद में यहाँ में लेके हम सिंपली क्लिक कर देने से, राइट क्लिक कर देने से ये व्यू हो जाएगा। बस इसका काम कंप्लीट हो गया। तो ये व्यू हो गया तो हम नेक्स्ट पेज में जाएगा। ये पेज देखिए, ये पेज ब्लैंक है, तो हमको अभी क्या करना है, ये जो ब्लैंक टूल है इसको पहले क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने से येलो हाईलाइट होगा तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का बाद में ये ब्लैंक पेज का कोई भी जगह में हम इसको क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली यहाँ में डिस्प्ले होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ में आ जाएगा। तो इसका काम हो गया। तो जितना भी ब्लैंक पेज है ये ब्लैंक ये करना है। और हमारा जो एक लाइन है, ऐसा लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन का प्रोविजन हम दिखाई नहीं दिया है। तो इसको सबसे इजी है ब्लैंक टूल यूज करना, सबसे इजी है इफ देयर इज एनी ब्लैंक पेजेस। उसके बाद ये हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस और मार्किंग सिस्टम। सपोज हम जो क्वेश्चन बच्चे का ये पेज स्क्रॉल करके अप डाउन कर सकता है, तो ये जो पेज निकल गया, सपोज ये पेज 4 नंबर पेज आ गया, ये पेज हम यहाँ में एंटर होने के साथ साथ ये पेज ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 10 है, सब क्वेश्चन 10 है, ये 1 क्वेश्चन नंबर का सब क्वेश्चन 10 है। तो इसको सिलेक्ट करने का बाद में क्या है, ये स्टेप मार्किंग है। सपोज यहाँ में 1 by 1 मीन टोटल स्टेप होगा 1 स्टेप, उसका जो है ये एम हाईलाइट होना पड़ेगा। ये एम हाईलाइट होने से यहाँ में राइट क्लिक करना है। ये राइट क्लिक करने का साथ साथ हम ये स्टेप मार्किंग का एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा, वहां में 0, 1, 0.5 ऐसा करके मार्क्स दिखाई देगा। जो अप्रोप्रिएट मार्क है उसको हम लोग क्लिक करने से ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है और ये जो राइट साइन है, राइट टिक मार्क है, वो भी डिस्प्ले हो जाता है। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 9, तो 1 का 9 क्वेश्चन क्या है, ये इसको हम यहाँ में लेके ये जगह में क्लिक करने का साथ साथ ये क्वेश्चन ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और जब विदाउट हाईलाइटिंग द क्वेश्चन हम यहाँ में इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। और जब ये मेरा ये डिस्प्ले ये मार्किंग मोड में रहेगा, स्टेप मार्क मोड में रहेगा, तो अभी यहाँ में मार्क दे सकता है। इसका बाद में यहाँ में राइट क्लिक करने से फिर एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ में कितना स्टेप है, 1 स्टेप का 1 मार्क, लेकिन यहाँ में मार्क्स ऐसा रहेगा 0.5, 1 ऐसा जो मार्क्स रहेगा। तो यहाँ में करेक्ट होने से हम फुल मार्क्स दे सकते हैं। जो भी मार्क्स में हम क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। सो इन दिस वे हम लोग एक एक करके जो क्वेश्चन हम पेज में दिखाई देगा वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है फर्स्ट। तो करने से ये क्वेश्चन हाईलाइट होगा और वो क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं। हाउ वी कैन यूज द रिजेक्ट बटन। रिजेक्ट बटन हम क्यों यूज करेगा, रिजेक्ट बटन हम लोग ऐसा करके यूज करता है। सो मेरा हम लोग इंग्लिश मीडियम का कॉपी को चेक कर सकता है। तो मेरा मीडियम इज इंग्लिश। जब हम ये स्टार्ट बटन दबाया है तो एक जो आंसर वो कंप्लीट होने का बाद में, सबमिट करने का बाद में, कंफर्मेशन करने के बाद में दूसरा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। बाई चांस ये दूसरा मीडियम का आ गया, हिंदी मीडियम का आ गया, तो आई कैन नॉट चेक द हिंदी आंसर बुक। तो उस इन दैट केस हमको क्या करने का, ये जो रिजेक्ट बटन है इसको यूज करके ये कॉपी को हम रिजेक्ट कर सकते। ये रिजेक्ट बटन क्लिक करने का साथ साथ ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ऐसा वाला एक मैसेज बॉक्स आएगा, तो उसमें रीजन फॉर रिजेक्ट। तो रीजन फॉर रिजेक्ट यहाँ में क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन होता है। ये मीडियम हम सिलेक्ट है, मीडियम ऑफ आंसर बुक इज डिफरेंट, ये मेरा मीडियम नहीं है। तो हम कमेंट में लिखता है, रिमार्क में लिखेगा ये हिंदी लैंग्वेज, तो करके हम सबमिट कर देने से वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये हो गया रिजेक्ट। कौन का ग्राउंड पे हम लोग रिजेक्ट कर सकता है, ये हमें बहुत सारा रीजन है, जो अप्रोप्रिएट रीजन है उसको करना है और रिमार्क में थोड़ा वो लिख देना है। करने के बाद में इसको सबमिट करने से वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने का साथ में वो पूछेगा विल यू इवैल्यूएट अनदर कॉपी। अगर ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यस करने से दूसरा कॉपी आ जाएगा, ऐसा है।
जब हम सबमिट बटन, मेरा अगर ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन चेक्ड एंड ये कंप्लीट होने का बाद में हम लोग क्या करना है, देन फर्स्ट तो हम लोग ये सेव करना है। बीच-बीच में ये जो सेव बटन है इसको क्लिक करके सेव करते जाना है। हम लोग यहाँ में कोई भी कीबोर्ड यूज नहीं कर सकता है, जो यहाँ में ऑन स्क्रीन जो बटन है उसको यूज करना पड़ेगा ओनली। तो ये एक डिमेरिट है ये ऑन स्क्रीन मार्किंग का। तो ये सेव बटन क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा। तो उसका बाद में जब हम ये सबमिट बटन को क्लिक करता है, ये जो सबमिट बटन है ये इसको क्लिक करने का साथ साथ ये डिस्प्ले होगा, ये जो ये डिस्प्ले बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। यहाँ में पूरा मार्क्स को रिव्यू करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ऐसा दिखाई देगा। हाँ, अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो हम लोग कंफर्म करना है। तो मेरा ये जो कंप्लीशन होने का बाद में अगर हम कैसे करके देख सकते हैं, ये जो मेरा पूरा कंप्लीट जो पेजेस है वो भी ग्रीन हो जाएगा और यहाँ में कोई भी जो क्वेश्चन है ब्लैंक नहीं रहेगा। अगर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें NA का ये अलॉट किया है, NA अवार्ड किया है और जो मार्क मिला है उसको प्रॉपर मार्क अवार्ड किया है। और एक चीज देखना है, ये जो स्टेप मार्किंग सिस्टम है यहाँ में जब तक ये स्टेप मार्किंग कंप्लीट नहीं होगा ये भी ग्रीन नहीं होगा, ये येलो रहेगा। सपोज 2 या 3 स्टेप से, अगर 2 स्टेप में से हम पूरा 2 यहाँ में मार्क दे दिया लेकिन स्टेप मार्किंग का जो टोटल है उसको नहीं किया है, जैसे ये है स्टेप मार्किंग का टोटल, इसको भी अगर नहीं करता है तब भी ये ग्रीन नहीं होगा। तो इसको क्लिक करने के लिए ये जो स्टेप मार्किंग कंप्लीट होता है, सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ में इसमें करना है लेफ्ट क्लिक और मार्क देने के लिए करना है राइट क्लिक। तो जो स्टेप मार्किंग का टोटल के लिए हम लोग को यूज करना है लेफ्ट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक करना है, याद रखना है। और मार्क अवार्ड करने के लिए हम लोग को राइट क्लिक करना है, राइट। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो एवरीथिंग चेक करने का बाद में अगर एवरीथिंग इज कंफर्म, देन ये कंफर्म बटन क्लिक करने का साथ साथ वो सबमिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दूसरा आंसर बुक आ जाएगा, दूसरा आंसर स्क्रिप्ट आ जाएगा। अगर हम दूसरा आंसर स्क्रिप्ट चेक करने का मन नहीं है तो हम ये एग्जिट बटन दबा के एग्जिट भी कर सकता है। जब हम एग्जिट बटन क्लिक करता है तो फिर हमको ये मेन जो इंटरफेस है, मेन जो असेसमेंट मेन्यू है वहां में लेके आता है, रिडायरेक्ट करता है। एग्जिट क्लिक करने का साथ साथ वो रिटर्न टू मेन मेन्यू हो जाता है, हम लोग मेन मेन्यू में वापस आता है। जब मेन मेन्यू में आता है तो हम लोग फिर वो तारीख में, वो डेट में हम अपना कॉपी इवैल्यूएशन किया है। टोटल मैं आज मॉक टेस्ट में 3 कॉपी को कंप्लीट किया है, देन टोटल इवैल्यूएशन कंप्लीटेड 3, ये 3 आंसर बुक्स हम कंप्लीट किया है। तो इसमें जो टेबल है ये हमें पूरा दिखाई मिलेगा। तो इंग्लिश का हम 2 कॉपी कंप्लीट किया है और हॉर्टिकल्चर का मैं 1 कॉपी कंप्लीट किया है और 2 कॉपी को रिजेक्ट किया है, बिकॉज यहाँ में रिजेक्ट का कारण था दूसरा लैंग्वेज और दूसरा मीडियम के लिए। तो रिजेक्ट का कॉलम में मेरा 2 कॉपी आ गया और कंप्लीटेड का कॉलम में 3 कॉपी आ गया। तो टोटल 3 कॉपी में से 2 मेरा रिजेक्ट हुआ था। तो उसका बाद में हम लोग जो ये है, ये मेन मेनू का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन मेनू है वहां में जाके दिन का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट होने का बाद में हम लोग क्या कर सकता है, ये सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट को चेक कर सकता है। सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट चेक करने के लिए इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा आधा मिनट या 30 सेकेंड या 1 मिनट टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। तो वेट करना है जब तक ये डिस्प्ले नहीं होता है। डिस्प्ले होने का बाद में ये जो सब्जेक्ट में, कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर ऑफ कॉपीज चेक किया हूँ तो वो डिस्प्ले हो जाता है, वो मेन पेज में भी है। तो ये जो है हम डाउनलोड भी कर सकता है। इसको डाउनलोड करने से एक्सेल फाइल एक डाउनलोड होगा, उसको शेयर भी कर सकता है। सो नेक्स्ट है डेली रिपोर्ट है, ये डे वाइज रिपोर्ट, हम एक दिन में कितना कॉपी चेक किया है उसका भी ये जो डेली वाइज डे वाइज रिपोर्ट को इधर क्लिक करने से ऐसा एक रिपोर्ट निकल जाता है। तो ये रिपोर्ट को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये डेट में 20 फरवरी में, आज का डेट में 20 फरवरी में टोटल कंप्लीट किया हूँ 3 आंसर बुक, हॉर्टिकल्चर का 1 और इंग्लिश का 2। नेक्स्ट इवैल्यूएटर वाइज मार्किंग रिपोर्ट, ये जो हम अगर इसको कितना आंसर स्क्रिप्ट में कितना मार्किंग दिया है उसका रिपोर्ट देखना है तो हम जो इवैल्यूएटर वाइज मार्किंग रिपोर्ट यहाँ में है, इवैल्यूएटर यहाँ में है, इवैल्यूएटर मार्क्स रिपोर्ट। तो इसको क्लिक करने से ये रिपोर्ट निकल जाता है यहाँ में। तो इसमें जो इंग्लिश का है इवैल्यूएटर का जो कोड होगा इसमें होगा सब्जेक्ट कोड होगा, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में 80 होता है और हॉर्टिकल्चर में 60 होता है। इवैल्यूएटेड 3 कॉपीज
तो यहाँ में कितना मार्क्स दिया हो, ये 2 कॉपी में 0 to 20% मार्क्स मिला है और यहाँ में डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स है। 60% एंड अबव, इंग्लिश में 2 और हॉर्टिकल्चर में 1 स्टूडेंट को और एक आंसर बुक में मिला है। सो इन दिस वे वी कैन चेक द इवैल्यूएटर वाइज मार्क्स रिपोर्ट, किसको कितना मार्क। नाउ प्रैक्टिकल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम करके देखता है। फर्स्ट ये क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है, उसका बाद में हम लोग ये ऑन स्क्रीन, ये सीबीएसई का ऑन स्क्रीन जो मार्किंग यूआरएल है इसको क्लिक करेगा। तो यूआरएल क्लिक करने का बाद में ये पेज डिस्प्ले हुआ है, ये लॉगिन पेज है। फर्स्ट यहाँ में ये इवैल्यूएटर का जो आईडी है इसको फिल करना है। उसके बाद ये पासवर्ड चेंज, जो पासवर्ड है इसको ये हमें एंट्री करना है। देन स्कूल नंबर को एंट्री करना है, ये हमें 37025 हम एंट्री कर रहा है। देन ये डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट ये हमें 25/03, देन ये 1969 डेट ऑफ बर्थ हम कर लिया। देन सेंड ओटीपी क्लिक करना है, सेंड ओटीपी। अभी अपना जो मोबाइल है वो हमें ओटीपी आएगा, ये मेरा ओटीपी आ गया। तो ओटीपी 156622 हमें एंटर कर दिया। एंटर करने का बाद में ये लॉगिन को क्लिक करना है। तो ये यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन द OSM पोर्टल। तो हम ओके को क्लिक करेगा। ओके क्लिक करने का बाद में ये जो मेनू निकल गया। मेन मेन्यू निकलने का बाद में फर्स्ट ये प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। ये प्रोफाइल में ये जो है इसको अपडेट करने का बाद में ये हमें ये अपडेट को क्लिक करना है। तो ये प्रोफाइल अपडेट हो गया। प्रोफाइल अपडेट होने का बाद में ये मेन असेसमेंट मेनू को क्लिक करना है, मेन असेसमेंट डैशबोर्ड। इसको हम सेव नहीं करेगा। तो मेन असेसमेंट जो डैशबोर्ड है ये खोल गया। ये खोलने का बाद में फर्स्ट 1-2 बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद में ये जो पूरा डैशबोर्ड आ गया। फर्स्ट ये सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का 301 और साथ में 1 है, दैट इज क्वेश्चन पेपर सेट। सब्जेक्ट नेम, अवेलेबल आंसर स्क्रिप्ट, अभी भी इतना अवेलेबल आंसर स्क्रिप्ट बाकी है। तो ये सब देखने का बाद में हमको ये स्टार्ट जो बटन है इसको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन क्लिक करने से ऑन स्क्रीन में आंसर बुक आएगा और वो हम इवैल्यूएट कर सकेगा। सो लेट स्टार्ट। लोडिंग हो रहा है। सो ये एक आंसर बुक डिस्प्ले हो गया। सो ये इंग्लिश कोर का आंसर बुक है, इसको हम अभी ऑन स्क्रीन इवैल्यूएट करेगा। फर्स्ट जो यहाँ में ये लेफ्ट साइड में जो है ये मार्किंग पैनल है। फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर है विथ सब क्वेश्चन। सेकंड जो है मैक्सिमम मार्क्स शो कर रहा है। थर्ड जो एंट्री जो बॉक्स, जितना भी बॉक्स है ये एंट्री बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, इसमें मार्क ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और ये स्टेप्स को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नीचे में ये जो मार्क का जो पैनल है ये हमें नीचे में ये NA जो बटन है ये नॉट अटेम्प्टेड और नॉट आंसर बटन है। तो हमें स्टूडेंट्स आंसर नहीं करता है, इसको अवॉइड करना है। ये पोर्शन में ये पेज नंबर्स, पेजेस ऑफ द आंसर बुक। नॉर्मली आंसर बुक का पेज नंबर्स होता है 1 से 32 तक। ये हम अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कोई भी पेज। सो ये रेड है। जब हम जो पेज हम चेक करेगा वो ग्रीन हो जाएगा। और दीज आर टूल्स, ये जो टूल्स है ये एनोटेशन टूल्स है, इसको यूज करके हम लोग ये कॉपी को ऑन स्क्रीन चेक करेगा और इवैल्यूएट करेगा। ये मार्किंग टूल है, ये राइट टिक टूल है, ये रॉन्ग जो है उसको क्रॉस टूल है, ये व्यू टूल है, ये ब्लैंक पेज का है, ये नोट का है, ये रिपीट आंसर का जो अगर कोई आंसर रिपीट है तो इसको ये कर सकता है, और ये डिलीट टूल है। ये सेव बटन है, ये हमें ये जो मार्किंग स्कीम है ये सॉल्यूशन जहाँ में है बटन, उसमें क्लिक करने से मार्किंग स्कीम ऑनलाइन दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन पेपर भी है, डिजिटली ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भी आएगा। और ये रिजेक्ट बटन है। देन फाइनली ये जो ग्रीन बटन है ये सबमिट बटन है। कंप्लीट होने का बाद में इसको सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जिट बटन। सो लेट अस स्टार्ट चेकिंग नाउ। फर्स्ट ये जो पेज है ये टाइटल पेज है, इसमें कोई मार्क देना नहीं है, तो इसको हम सिंपली व्यू करेगा। तो व्यू अभी हाईलाइट हो गया, तो इसमें क्लिक करने से ये व्यू हो गया, तो ये पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम ये स्क्रॉल डाउन करने से ये नीचे जाएगा, तो ये पेज नंबर अभी 2 निकल गया। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में ये आंसर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3B, तो हम यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3B को ढूंढेगा। 3B क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3B को क्लिक करने का साथ साथ ये एक्टिव हो जाता है, तो हम इसको मार्किंग कर सकता है, चेक कर सकता है। फर्स्ट 3B में मैक्सिमम मार्क है 4 और स्टेप 1 है। तो मेरा ये जो
मार्क्स बटन भी, मार्किंग बटन भी हाईलाइट हो गया तो ये होगा। फर्स्ट इसको राइट क्लिक करना, ये राइट क्लिक कर दिया तो ये मार्क्स आ गया 0 से लेके 0.5 1 ये। तो जो हमको मैक्सिमम मार्क है 4 तक है, तो जो मार्क अप्रोप्रिएट लगता है उसका अवॉइड करने के लिए वो मार्क वहां में लेने से ये हाईलाइट हो जाता है और उसको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने से ये अवॉइड हो गया, ये मार्क हो गया, ये क्वेश्चन चेक हो गया। नेक्स्ट हम नीचे जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A यहाँ में क्लिक करने से एम्प्टी बॉक्स में ये एक्टिव हो गया, तो ये क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं अभी। तो इसमें मार्क भी हाईलाइट है, तो इसको भी राइट क्लिक करने से मैक्सिमम मार्क 4 है, तो 4 है से ये राइट क्वेश्चन है, 3.5 हम डाल दिया, इसको ये चेक हो गया। तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेगा क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 5A को फर्स्ट क्लिक करता है, ये एक्टिव हो गया। तो एक्टिव होने के बाद में ये मार्क्स कॉलम हाईलाइटेड है, तो ये भी एक्टिव है, तो इसको राइट क्लिक करने से इसका मैक्सिमम मार्क है 5 से अच्छा लिखा है तो 5 मार्क्स दे दिया। नीचे जाता है, ये पोर्शन को हमको सिंपली ये टिक करना है। टिक करने के लिए ये इसको पहले क्लिक करना है, तो ये इसका काम हो गया, ये मार्क पर मैं दे दिया। देन बी, ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसको भी टिक मार्क कर दिया, वो मार्क्स पहले अवार्ड कर दिया। उसका बाद इवैल्यूएशन क्वालिफिकेशन वो उसी क्वेश्चन का 5A का ही पार्ट है ये सब। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6, ये 6A नहीं लिखा है तो इसमें हम NA को अवार्ड कर देगा। ये NA अवार्ड करने से एक पूछता है, ओके को क्लिक करने से वो NA आ गया, तो 6B एक्टिव हो गया। अभी 6B में कितना मैक्सिमम मार्क 5 है, तो अभी मार्क्स ये हाईलाइटेड है, एक्टिव है, तो इसको हम ये हाँ इसमें ही मार्क दे सकता है ये हमें, तो ये हो गया। तो इसमें 5 मार्क्स है, हम 4 दे दिया, तो ये उसी का पार्ट था, इसको जस्ट टिक मार्क कर देना है राइट बोल के। नेक्स्ट उसका उसमें ही करना है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7A, क्वेश्चन नंबर 7A को हम यहाँ में क्लिक करेगा तो ये एक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7A में 6 स्टेप है, दैट मीन्स 6 बार इसको मार्किंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ये हमें जो है स्टेप 1 मार्क है, तो इसको 1 मार्क दे दिया। नेक्स्ट यहाँ में राइट क्लिक करेगा, इसमें भी 1 मार्क है, 2 स्टेप हो गया। यहाँ में राइट क्लिक करने से ये आधा मार्क दे दिया, 3 स्टेप हो गया। इसमें राइट क्लिक 1 मार्क, तो ये भी राइट क्लिक, इसको भी हम दे दिया, ये 6 स्टेप है। तो ये 6 स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन ये येलो है, येलो मीन्स हमारा जो ये स्टेप मार्किंग है सब क्वेश्चन का हम टोटलिंग नहीं किया। इसको टोटल करने के लिए हम सिंपली लेफ्ट क्लिक करेगा, लेफ्ट क्लिक करने से ये टोटल निकल गया, तो ये ग्रीन हो गया, मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 7B नहीं लिखा है, तो इसको हम NA को अवॉइड कर देता है, NA हो गया। देन 8A में 4 मार्क्स है, 4 स्टेप्स है, इसको भी ऐसा करके मार्क कर दिया। 1 सेकेंड स्टेप है 0.5, थर्ड स्टेप है 1 मार्क, फुल मार्क मिल गया। देन सेकेंड स्टेप इज 1। तो ये पूरा चारों स्टेप कंप्लीट करने का बाद में जब तक हम ये साफ क्वेश्चन का टोटलिंग नहीं करेगा, ये येलो रहेगा, दैट मींस इनकम्प्लीट है। तो इसको टोटल करने के लिए यहाँ में हम लेफ्ट क्लिक करेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8A का पूरा टोटल आ गया 3 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 9B, 8B का नहीं लिखा है, तो यहाँ में NA दे के जाना है, साथ साथ दे के जाने से अच्छा ही है, तो ये NA अवार्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9B दैट इज 9A नहीं लिखा है, तो NA हम दे दिया, NA हो गया। क्वेश्चन नंबर 9B का एक्टिव हो गया क्लिक करने के साथ साथ, तो इसमें 6 स्टेप है, तो 6 बार इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा। 0.5, 1 मार्क फुल मार्क, इसको भी 0.5 डाल दिया, तो इसको ये क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मार्क और ये 6 में 1 मार्क। तो ये टोटल कर लिया, इसका भी साफ टोटल का टोटल करना है, तो लेफ्ट क्लिक करने के साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 9B का जो 6 स्टेप्स है ये टोटल हो गया, तो 4.5 मार्क्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में साफ क्वेश्चन 1 में 1 स्टेप है, तो इसको सिंपली 2 मार्क मैक्सिमम है डाल दिया। साफ क्वेश्चन 2 क्लिक करना है, ये एक्टिव हो गया। ये 3 है, 3 को आंसर किया है, तो इसको आंसर नहीं किया, तो इसको NA दे दिया। तो अभी 3 को क्लिक करने का साथ साथ ये बॉक्स में ये एक्टिव हो गया, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 2 है, तो 1 डाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ये देखिए ये रॉन्ग हो गया, ये 2 होगा, तो 2 में भी हमको ये NA जहाँ में दिया था इसको फिर NA को हटाना है, तो NA को हम यहाँ में क्लिक कर लेगा। NA को क्लिक करने से ये NA डिजेबल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से NA हट गया, ये NA रिमूव हो गया। तो NA रिमूव होने का साथ साथ इसको फिर ये जो है इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ये जब तक एक्टिव रहेगा वो डिलीट नहीं होगा, इसको डिलीट करना है। अभी ये
सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में ये हम डिलीट बटन को क्लिक करने के साथ साथ वो रिमूव हो गया। तो अभी इसको हम मार्क दे सकता है। ये यहाँ में 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स का बदले में हम 1 मार्क दे दिया, तो इसका अभी 1 मार्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 में 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स अवार्ड कर दिया। ये 4 है तो 4 क्वेश्चन नंबर का साथ साथ ये एंट्री बॉक्स में एम्प्टी बॉक्स में क्लिक करना है तो एक्टिव होगा। देन उसका बाद यहाँ में मार्क देना है। उसका बाद 10 का सब क्वेश्चन 5 को क्लिक करने से ये एक्टिव होने का साथ साथ राइट क्लिक देन मार्क अवार्ड 1 मार्क। तो उसका बाद क्वेश्चन नंबर 10 का 6 सब क्वेश्चन 10 का 6 में ही लिखा है तो इसमें NA डाल देगा। NA डाल देने से ये हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, 11 में क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्टिव हो गया। इसमें राइट क्लिक का बाद में मैक्सिमम मार्क 2 है, ये 2 का जगह में 1.5 दे दिया। देन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया तो NA डाल दिया। NA डाल देने से यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 3 एक्टिव हो गया, 3 में मार्क्स 2 दे दिया। उसका बाद 12A में 5 मार्क है, 12A एक्टिव हो गया। 12A नहीं लिखा है, 12B लिखा है तो इसमें NA को क्लिक करने से वो NA अवार्ड हो जाएगा। NA अवार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12B को क्लिक करना है, क्लिक करने से वो एक्टिव हो गया। यहाँ में राइट क्लिक करने से मैक्सिमम मार्क 5 तक इसमें शो करेगा तो यहाँ में से 4 मार्क को हम अवार्ड कर दिया। ये हो गया, ये उसी का पार्ट था तो इसमें हम ये सिंपली ये राइट चिन्ह को राइट टिक मार्क को यहाँ में क्लिक कर देगा। ये क्वेश्चन शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13A, अभी क्वेश्चन नंबर 13A में 5 मार्क्स है, ये एक्टिव हो गया। इसमें हम मार्क देगा, मैक्सिमम 5 मार्क से 4 मार्क अवार्ड कर दिया। उसका बाद सेक्शन A का फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो ऊपर जाना पड़ेगा, हम ऊपर जाना है ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन A में मैक्सिमम मार्क 2 स्टेप 2 ये स्टेप, यहाँ में 2 मार्क 2 बार मार्क देना है 0.5 और सेकेंड स्टेप में ये 0। फिर इसको क्लिक करने से ये टोटल हो गया 0.5 मार्क्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 इसमें 1 स्टेप है, 1 मार्क है, 1 मार्क मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 को क्लिक करने का एम्प्टी बॉक्स में क्लिक करने का साथ साथ वो एक्टिव हो जाता है। देन इसको राइट क्लिक करना है, क्वेश्चन ये आंसर का उधर लेके आने से ये मैक्सिमम मार्क 1 है, 1 मिल गया, 0.5 हो गया। देन 4 हो गया, 4 में मैक्सिमम मार्क 2 है, स्टेप भी 2 है तो ये यहाँ में को 1 मार्क दे दिया। स्टेप 2 है, यहाँ में भी देना पड़ेगा, 1 मार्क दे दिया। तो इसका फिर टोटल करना है, ये टोटल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2 मार्क मिल गया। 5 में मैक्सिमम मार्क 1 है, 1 स्टेप है, वो क्लिक करने का बाद में ये राइट क्लिक एंड 1 मार्क। का बाद 6 का क्लिक करना है, यहाँ में राइट क्लिक करना है, रॉन्ग जगह में हो गया, ये नहीं होगा, इसको यहाँ में क्लिक करना है, इधर मार्किंग करना है। देन 7 एक्टिव, इसमें राइट क्लिक 1। देन 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्लिक कर दे तो एक्टिव होने का साथ साथ यहाँ में मार्क दे सकता है 0.5। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हाफ मार्क दे देता है, 0.5 मीन्स हाफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 में 1 मार्क, 1 स्टेप फुल मार्क हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब क्वेश्चन है ना 10 है तो इसको भी टोटल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 स्टेप क्लिक करने के साथ साथ एक्टिव होता है तो यहाँ में मार्क दे सकता है, 1 मार्क। देन 2 यहाँ में 1 मार्क, 3 2 स्टेप्स 2 मार्क, 0.5 मार्क। फिर और एक स्टेप है उसमें 0.5 मार्क, यहाँ में हम क्लिक कर देगा, क्लिक करने के साथ साथ ये 1 हो गया, 0.5 प्लस करने से 1 होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में होता है 2 स्टेप्स 2 मार्क, ओके, यहाँ में 1 मार्क। देन इसमें भी 1 मार्क, इसको भी टोटल कर देना है, 2 मार्क टोटल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 0.5 एंड 0.5 टोटल को 1 हो गया। उसके बाद 6 को फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में क्लिक करने से वो एक्टिव होगा। देन उसमें मैक्सिमम मार्क है 1 स्टेप पे हो गया। देन 7 को क्लिक करते एक्टिव हो गया, उसमें मैक्सिमम मार्क 1 स्टेप 1 फुल मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्लिक करने से एक्टिव हो गया तो इसमें मैक्सिमम मार्क 1 मिल गया। तो उसका बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 बाद में देख लेगा, ये ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज होने से इसको हम लोग इसको क्लिक करना है तो इसको सिंपली क्लिक करने से लेफ्ट क्लिक करने से ब्लैंक हो गया, इसको चेकिंग हो गया, इसको भी क्लिक करते जाना है। ब्लैंक जहाँ में भी जितना भी ब्लैंक ये क्लिक, सिंपली क्लिक ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज, ये ब्लैंक जब तक हाईलाइट रहेगा उसको हम क्लिक करते जाए।
जाएगा, ब्लैंक ब्लैंक, ये खाली पेज, ये भी खाली पेज। सो मेरा जितना भी पेज वो चेक हो गया तो ये ग्रीन हो गया। अभी देखना है कौन कौन क्वेश्चन में वो ब्लैंक है, उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो स्टूडेंट उसको NA अवॉर्ड करना है। ये ब्लैंक है तो इसको हम NA को अवॉर्ड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4B ब्लैंक है, मींस स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसमें हम क्लिक करने से एक्टिव होता है तो NA ग्रेड को मार्क्स को अवॉर्ड कर देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5B अटेम्प्ट नहीं किया है, आंसर नहीं किया है तो उसको NA मार्क्स अवॉर्ड कर दिया। ऐसा करके जितना भी ब्लैंक क्वेश्चन है उसको देना है। देन क्वेश्चन नंबर 13B नॉट आंसर्ड, उसको भी NA अवार्ड देना पड़ेगा। NA देने से, ये ओके करने से NA अवार्ड हो गया। तो अभी मेरा ये इवैल्यूएशन चेकिंग कंप्लीट हो गया। तो हम एक बार ये जो सेव बटन है इसको हम क्लिक करके सेव कर लेता है। तो ये सेव हो गया। सेव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सेविंग हो गया मेरा। तो अभी इसको सबमिट करना है। ये जो राइट साइड में ग्रीन बटन है इसको क्लिक करने से सबमिट करके देखेगा। ये मार्क्स प्रीव्यू, ये थोड़ा चेक करना है फिर दोबारा। इसमें ब्लैंक है तो वो लेगा नहीं, सबमिट होगा नहीं, तो इसको एक बार प्रीव्यू करना है। अगर कोई मार्क चेंज करना है तो इसको ये क्लोज करके दोबारा चेक कर सकता है। अगर एवरीथिंग इज ओके, ये कंफर्म बटन को क्लिक करने से ये सबमिट हो जाएगा। तो मेरा ये टक लग रहा है एवरीथिंग इज ओके, सो हम कंफर्म बटन को क्लिक करके इसको सबमिट कर देगा। तो मेरा जितना भी चेकिंग वो करेक्ट है तो इसको श्योर है तो ओके कर देगा। ये ओके कर दिया तो ये सबमिट हो गया। सो जो फर्स्ट आंसर बुक कंप्लीट होने के बाद में सबमिट करने के साथ साथ ये दूसरा आंसर बुक रैंडमली ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। अगर हमको ये आंसर इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया तो हम आगे नहीं करेगा, सिंपली हम एग्जिट करेगा। ये एग्जिट बटन है, इसको दबाने से ये एग्जिट हो जाएगा। ये पेज को एग्जिट करने के लिए ओके को ओके कर देना है। तो अभी एग्जिट करने का साथ साथ फिर ये जो मेन जो असेसमेंट पेज है, डैशबोर्ड है, उसमें आ गया है, उसमें रिडायरेक्ट कर दिया। उसमें हमारा ये जो ये दिखाई देगा क्या क्या हम एक्टिविटी किया है, कितना कॉपी चेक किया है। तो आज का दिन में मैं टोटल 4 कॉपी चेक किया हूँ, 3 इंग्लिश का और 1 हॉर्टिकल्चर का। और रिजेक्ट कितना किया हूँ, 2 कॉपी को। वो रिजेक्ट का रीजन क्या था, लैंग्वेज का था, मीडियम दूसरा था, तो ये रिजेक्ट। तो ये हो गया। तो इसका बाद में हमको क्या करना है, सो सब्जेक्ट वाइज हम कितना कॉपी चेक किया है इसको क्लिक करके इसको देख सकता है। ये आ गया, सब्जेक्ट वाइज आ गया। हॉर्टिकल्चर में 1 कॉपी, इंग्लिश में 3 कॉपी मॉक टेस्ट किया है। अगर हमको चाहे तो ये डाउनलोड भी कर सकता है, डाउनलोड करके सेव करके रख सकता है। इसका काम कंप्लीट। नेक्स्ट, हम आज का दिन में कितना कॉपी चेक किया हूँ तो उसको देखने के लिए डे वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट को क्लिक करना है। यहाँ में जो माउस का कर्सर है इसको क्लिक करने से ये रिपोर्ट आ गया, ये डे वाइज रिपोर्ट डिस्प्ले हो गया। तो ये कंप्लीटेड आंसर बुक इवैल्यूएशन डेट आ गया, 4 कॉपी हम चेक किया है। अगर इफ नेसेसरी हम इसको एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके सेव करके रख सकता हूँ। तो डे वाइज रिपोर्ट देख लिया। उसका बाद स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट हमको देखना मन है तो हम इसको क्लिक करने से आंसर बुक वाइज हम मार्क्स को देख सकेगा। सो इसको क्लिक करके देखता है क्या आता है। तो ये निकल गया, मेरा आज का दिन का जो काम है वो पूरा निकल गया। ये तो मार्क, ये एडिट हिस्टोरी एडिट नहीं हुआ है अभी तक। एडिट स्क्रिप्ट, इसको स्क्रिप्ट पे एडिट भी कर सकता है। यहाँ में इंग्लिश का ये 58 मार्क्स मिला है, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर में 58% है। तो इसी तरह जितना भी हम कॉपी चेक किया है ये आंसर बुक वाइज पूरा डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट है AAC रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट। इसको हम देख सकता है कितना वो AAC रिव्यू किया है। एक्चुअल जब इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा तब इसको दिखाई देगा। यहाँ में तो मॉक टेस्ट है, सिंपली इसमें दिखाई नहीं मिलेगा। ये मेरा जो आज का जितना कॉपी आंसर बुक इवैल्यूएशन किया है उसका मार्क्स का रिपोर्ट देख लेता है। ये इसको क्लिक करने से ये इवैल्यूएशन का मार्क्स का रेंज को देखे। तो ये फर्स्ट है इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स है 80, हॉर्टी का मैक्सिमम मार्क्स 60। इंग्लिश में 4 कॉपी टोटल चेक हुआ है, उसमें से 0 to 29 नहीं मिला है को भी, 30 to 39% नील, 40 to 49% नील। उसका बाद 50 to 59% किसी नहीं मिला है एंड 60% एंड अबव 3 स्टूडेंट को मिला है। इन दिस वे वी कैन चेक द इवैल्यूएटर वाइज मार्क्स रिपोर्ट। सो इसको चेक करने का बाद में इसको हम डाउनलोड भी कर सकता है। डाउनलोड करने से ये सेव हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन चेक स्मूथली चेक द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, और ऑन स्क्रीन कॉपी को हम लोग इसी तरह चेक कर सकता है। हाउ ये ऑन स्क्रीन विजुअल सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है। दिस इज द क्वालिटी चेक
flowchart. First, evaluator or teacher evaluation will be done by the evaluator. So on screen evaluation or checking is done by evaluator. ये फर्स्ट, उसका बाद में ये AEC का पास जाता है, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, वहां में रेंडमली सैंपल चेकिंग करेगा. उसका बाद हेड एग्जामिनर जो होता है, हेड एग्जामिनर विल रिव्यू एंड फाइनल अप्रूवल. सो हेड एग्जामिनर will give the final approval of the copy evaluated or checked. CBSE follows strict moderation procedures like assistant head examiners check sample evaluated answer copies. उसका बाद में head examiners review the sample copies checked by the AEC or assistant head examiner. If inconsistent found in marking may be फ्लैग्ड. जो अगर मार्किंग सिस्टम में कुछ इनकंसिस्टेंट है, अगर प्रॉपर नहीं है, तो वो फ्लैग ऑफ करेगा. फ्लैग ऑफ हेड एग्जामिनर ने फ्लैग ऑफ कर सकता है, देन उसको रीचेक करना पड़ेगा. देन करेक्शंस मे बी एडवाइज्ड बाय द AEC और HE. हेड एग्जामिनर और असिस्टेंट हेड एग्जामिनर वो एडवाइस कर सकता है अगर इम्प्रॉपर है, चेकिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो दोबारा करेक्शन, दोबारा OSM करने के लिए एडवाइस कर सकता है. सो मेंटेन यूनिफॉर्मिटी विद द ऑफिशियल मार्किंग स्कीम. जो हम लोग चेकिंग करता है उसका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना सबसे बेस्ट है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन एरर्स मे टेक प्लेस और व्हाट आर द कॉमन एरर्स वी शुड अवॉइड. फर्स्ट, अवॉइड स्किपिंग ऑफ ए पेज. कोई भी पेज स्किप करने से वो फाइनल सबमिशन नहीं होता है. सो नो पेज शुड बी स्किप बाय द इवैल्यूएटर. सो अवॉइड स्किपिंग और जंपिंग द पेज. अवॉइड मिसिंग सब क्वेश्चंस. अगर एक क्वेश्चन का बहुत सारा सब क्वेश्चन है, 1 to 5, 1 to 10 होता है, कोई भी सब क्वेश्चन हम लोग अवॉइड नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है. अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, सबमिट करने से बार बार वो रीडायरेक्ट करेगा. देन अवॉइड एंटरिंग मार्क्स इन रॉन्ग कॉलम. जो मार्क्स देने का राइट कॉलम है वहां में मार्क्स को क्लिक करने से मार्क्स ऑटो फिल्ड हो जाता है. दूसरा जो रॉन्ग जगह है वहां मार्क्स नहीं देना है. देन अवॉइड अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स विदाउट इंस्ट्रक्शन. तो इवैल्यूएटर्स शुड नॉट अवार्ड एनी ग्रेस मार्क्स विदाउट एनी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस. देन अवॉइड रशिंग इवैल्यूएशन. तो स्पीड इवैल्यूएशन अच्छा नहीं है. वेरी फास्ट और स्पीड इवैल्यूएशन करने से मिस्टेक होने का चांस है, ये सब एरर होने का चांस होता है. देयरफॉर एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्पीड. So we should maintain the accuracy or quality evaluation rather than speed evaluation. Take sufficient time for script. So जितना टाइम चाहिए वो शांति से पीसफुली वो स्क्रिप्ट को अच्छा से evaluation करना है. On screen marking is a designed to improve transparency, accuracy and efficiency in evaluation. So your professionalism ensures fairness in students' academic futures. Thank you for your dedication in evaluation process. If this video was helpful, please like this video, share with your colleagues, comment below, and please subscribe to Dr. Abdul Samad Tutorials for authentic updates. Thank you for watching.